क्या गाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें हौसला अफजाई होती है, हमारी एनर्जी में इजाफा होता है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एनर्जी में इजाफा तो बिरयानी खाने से होता है, इससे भी होता है, मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि सुना है कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आते। हम 4-5 वीडियो रोज़ डाल ही देते हैं तकरीबन। तो उन बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज की हमारी वीडियो है फ्यूचर ऑफ पनवेल। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फ्यूचर ऑफ पनवेल, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये क्या है? फ्यूचर ऑफ पनवेल, मुंबई। Welcome to Mumbai, a popular bustling metropolis where lakhs of Indians find gainful employment. One of the densest populated cities in the world, the financial capital of the country, a landmass of 7 islands and a linear geometry that makes it difficult to expand horizontally. To combat the city's geographical constraints, the Trans-Harbour Link was proposed to connect the island to the mainland across the sea, from Siuri in the island city to Nhava Sheva in Navi Mumbai. The Eastern Freeway running north-south on the eastern flange and the Worli-Sivri connector running east-west meet at Sivri. It is from here that the Trans-Harbour Link starts and goes across the harbour to connect to the mainland. On the mainland, the bridge will connect with NH4B at Chirle through a clover leaf interchange. Using the NH4B, one can travel south to JNPT port and on the northern side to Panvel and to the Mumbai-Goa road NH17 as well as the Mumbai-Pune expressway. The sea link cuts the distance between the island city and Panvel and further to Pune and Goa by about 15 kilometers and would save 50 minutes of commuting time. A new road link is also proposed to connect Chirle to the Mumbai-Goa highway and the Mumbai-Pune expressway to cut this distance further by about 7 kilometers. Thus, the Trans-Harbour Link would generate considerable economic savings in terms of fuel and vehicle operating costs and travel time, besides decongesting the existing roads and thereby reducing transport-related pollution in the city. Sivri Interchange. It is from here that the Trans-Harbour Link starts and goes across the harbour to connect to the mainland. The Trans-Harbour Link is 22 kilometers long with a 16.5 kilometer bridge across the sea and a 5.5 kilometer viaduct on land on the Navi Mumbai side. This would be the longest sea bridge in the country. This state-of-the-art bridge will be a boon for commuters travelling to Navi Mumbai and further up to Pune, Goa and southern India and would help move cargo in and out of the Mumbai port on the island city side and the Jawaharlal Nehru port on the Navi Mumbai side and further the proposed port at Revas. The access-controlled 6-lane freeway would also provide speedy connectivity to the proposed international airport in Navi Mumbai. Okay. A twin-track metro connectivity would also follow. The link is not merely a transport corridor. It would accelerate large-scale development of Ulve and Dronagiri areas in Navi Mumbai and in the Raigad district in the mainland through planned transformation of land uses that add economic value. The link facilitates and complements the all-round development of Navi Mumbai, making it a counter-magnet that decongests Mumbai and develops the mainland. जी जनाब, मुंबई, नवी मुंबई और कहाँ तक जा रहा है? पनवेल। कमाल कमाल। अच्छा, वही वाली बात है कि
रोड हैं तो तरक्की है। अच्छा, जो भी जहाँ से ये रोड गुजर रहा है और समंदर से तो गुजर ही रहा है, सी से, ठीक है, उसके साथ साथ जब जहाँ से ये ऐसी जगह से गुजर रहा है जहाँ पे लैंड है, तो जहाँ रोड आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपकी वहाँ पे आबादी, आपकी वहाँ पे कारखाने, आपकी वहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ जाती है। आपकी वो लैंड जो किसी काम की नहीं होती, यानी कि लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वे नहीं है, तो वो भी काम में आ जाती है, वो काम में आ जाती है। एक बहुत ही इन फ्यूचर, कब का कह रही हैं? इन फ्यूचर अभी तो एनिमेटेड था, आपने देखा है ना, लेकिन ये है कि इन फ्यूचर ये प्लान है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और आपको पता है कि मुंबई एक ऐसा सिटी है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सिटीज़ में शामिल होता है, जिसमें कराची भी है, ये भी है। मुंबई का मैंने सुना है कि व्हीकल का सबसे ज़्यादा बर्डन बिल्कुल मुंबई सिटी पे, ट्रैफिक वगैरह का इश्यूज वगैरह, लेकिन वहाँ से जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के रोड्स और कट्स मिलें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई का जो बर्डन है कम होगा। भाई मैं ब्रिजेस हैं, आपको बताऊं कि जब एक सिटी इतना कंजस्टेड हो जाता है तो उस शहर के अंदर मज़ीद रोड्स बनाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर ट्रैफिक को आपने डाइवर्ट करना है और अगर आपने ट्रैफिक को रूट्स देने हैं, अच्छा एक चीज़ है कि एक तो ट्रैफिक आपने रवां दवा रखना है तो आपको नए रूट्स बनाने हैं। सेकंड ये है कि जब एक बहुत बड़ा सिटी हो जाता है, मैंने कहीं सुना था, पढ़ा था कि अगर एक सिटी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाए, वो उसकी मौत है। तो उसकी वजह ये कि पब्लिक का इतना वहाँ पे वो आ जाता है, इतनी ज़्यादा पब्लिक आती है सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क की वजह से, रोज़गार की वजह से, ख्वाब पूरे करने की वजह से। कहते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इंटीरियर में, पंजाब में, सिंध में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक लड़का आता है कराची में, पूरी फैमिली आ जाती है, तो वो पूरी फैमिली को सर्वाइव करता है, पालता है, लोगों को भेजता है, खुद भी यहाँ पे सस्ती तरीके से। ये कह सकते हैं कि कराची पता नहीं कितनों को पाल रहा है। तो कराची अपने लेवल पे एक बड़ा सिटी है, अपने लेवल पे। मुंबई बहुत बड़ा सिटी, लेकिन वहाँ पे पूरे इंडिया के लोग एक तरक्की के सोच के आते हैं, पढ़ाई के लिए, पढ़ने के बाद, और कुछ ना कुछ बनने के लिए, कुछ ना कुछ ख्वाबों को लेकर समझे पूरा करने आते हैं। फिर उसका फिर ये मसला होता है कि आपका शहर छोटा पड़ने लग जाता है, बिल्कुल, ठीक है, वो फिर शहर की मौत है। फिर उसका हल क्या होता है? आसपास आबादियाँ बढ़ती हैं, लेकिन आसपास आबादियाँ जाएँ तो कैसे जाएं? पहाड़ों से चल के, कच्चे से चल के, समंदर से चल के तो नहीं जाएंगे ना, उनको चाहिए होता है रोड। तो आप इतने बड़े सिटी पे लोड कम करने का एक वाहिद ज़रिया है रोड्स, जो आवाम नहीं बना सकती। आवाम क्या बना सकती है? घर बना सकती है, बिल्डर्स जो होते हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं, लेकिन बिल्डिंग्स एक बिल्डर कहाँ बनाएगा? अगर रोड होगा तो बनाएगा ना, अगर वहाँ तक रोड जाएगा तो वो बनाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से मुंबई सिटी पे लोड कम पड़ेगा, नवी मुंबई की तरफ भी पब्लिक जाएगी और कनेक्ट करेगा बहुत सारे, आप देख रहे हैं बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे का इनका फ्यूचर और आगे तक लेके जाने का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और मुझे ऐसा लग रहा है पनवेल को बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की मिलने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, वही है ना कि वहाँ फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखिए, आप किस सिटी को मिला रहे हो? जो हब है पूरे इंडिया का। बिल्कुल, मुंबई जो है पूरे इंडिया का हब है। जब वहाँ से आप अपने इन सिटीज़ को मिला रहे हो, जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, लोग रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उनकी नाकामी भी समझे कामयाबी में बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, भले वो यूजलेस है लेकिन कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाएगा। तो इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट की वजह से इन फ्यूचर मुंबई का लोड काफ़ी कम होगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और इस तरह के प्रोजेक्ट कराची को भी चाहिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए